فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواہ البخاری فی کتاب المشارکہ۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک مثال اور بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، قرآن و حدیث کی پاسداری کرنے والے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی مثال اور قرآن و حدیث کے دائرے سے نکل کر کے زندگی گزارنے والوں کی مثال، منمانی زندگی گزارنے والوں کی مثال اور ربانی زندگی گزارنے والوں کی مثال کمثل قوم استہموا علی سفینہ، ان لوگوں کی طرح ہے کہ لوگ کشتی پر سوار ہوں اور کشتی دو منزلہ ہو۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ کشتی کی اوپر منزل میں کون رہے گا اور کشتی کے نیچے حصے میں کون رہے گا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرآن نکالا جاتا ہے۔ تو جن کا نام کشتی کے اوپری حصے میں رہنے کے لیے آتا ہے وہ لوگ کشتی کے اوپری حصے پر چلے جاتے ہیں، اور جن کا نام کشتی کے نچلے حصے پر رہنے کے لیے آتا ہے وہ کشتی کے نچلے حصے پر رہتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، جو لوگ کشتی کے نچلے حصے پر رہتے ہیں انہیں جب پیاس لگتی ہے تو مروا علی من فوقہم، پانی پینے کے لیے اپنے سے اوپر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب کشتی کے نچلے حصے پر رہنے والے یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پینے کے لیے اوپری حصے پر جاتے ہیں، اور اوپری حصے پر جانے کی وجہ سے اوپر جو لوگ ہیں انہیں ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، کیوں نہ ہم کشتی کے نچلے حصے پر ہی سوراخ کر لیں تاکہ پانی آسانی سے، سمندر کا پانی نچلے حصے پر آ جائے گا اور اس پانی کو ہم پینے کے لیے استعمال کر لیں گے، اوپر جانا نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، اگر کشتی کے نچلے حصے پر رہنے والے نچلے حصے پر سوراخ کرنے لگے اور اوپر والے نہ روکیں بلکہ انہیں کرنے دیں، ہمیں کیا مطلب ہے، وہ سوراخ کر رہے ہم تو اوپر ہیں، تو ہلکو جميعا، تو جب کشتی کے اوپر نچلے حصے پر پانی بھرے گا تو جب کشتی ڈوبے گی تو نیچے والوں کی بھی جان جائے گی اور اوپر والوں کی بھی جان جائے گی۔ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر کشتی کے نچلے حصے والے جب وہ کشتی پر سوراخ، کشتی کے اندر سوراخ کر رہے ہوں تو اوپر والے اگر روک لے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اگر تم نے کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی، ہم سب مر جائیں گے، لہذا سوراخ مت کرو، پانی پینے کے لیے اوپر آ جایا کرو، تمہارے اوپر آنے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نجو و نجو جميعا، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اصلاح معاشرہ کیوں؟ حدیث واضح کر رہی ہے کہ اصلاح معاشرہ اس لیے کہ اگر معاشرے و سماج میں کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوں اور کچھ لوگ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر کے خاموش ہیں، ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہم تو غلط کام نہیں کر رہے ہیں، فلاں شراب پی رہا ہے میں تو شرابی نہیں ہوں، فلاں زنا کر رہا ہے میں تو زانی نہیں ہوں، فلاں جوا کھیل رہا ہے میں تو جوا نہیں کھیل رہا ہوں، فلاں سودی لین دین میں ملوث ہے میں تو حلال کمائی میں مشغول رہتا ہوں، مجھے اس سے کیا مطلب ہے۔ اگر یہ ذہن معاشرہ اور سماج کے اندر پیدا ہو جائے تو جس طرح سے برائی کرنے والے
کا شکار ہوں گے، اسی طرح سے برائی کرتے ہوئے دیکھ کر کے جو لوگ چپ ہیں، تو جس طرح برائی کرنے والے مصیبت کے شکار ہوں گے، اسی طرح سے برائی کو دیکھ کر کے نہ روکنے والے بھی مصیبت کے شکار ہوں گے۔ تو اسی لیے اصلاح معاشرہ ضروری ہے کہ گناہ کرنے والوں کو اگر ہم نے گناہ سے روکا نہیں تو گناہ کرنے والوں کا جو انجام ہوگا، گناہ پر خاموش رہنے والوں کا وہی انجام ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کیوں؟ ایک اور حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الامت خسف ومسخ وقذف فقالت قلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا ظہر الخبث رواہ الترمذی فی ابواب الفتن۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الامت، امت محمدیہ میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ اس امت محمدیہ پر عذاب آئے گا، پتھروں والا عذاب آئے گا، چہرہ بگاڑ دینے والا عذاب آئے گا، زمین کے اندر دھسا دینے والا عذاب آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، ہمارے درمیان نیک لوگ، صالح لوگ، نماز پڑھنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، حلال کمانے والے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے موجود رہیں گے، اس کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ کہا اذا ظہر الخبث، جب شر و فساد ظاہر ہو جائے گا، برائیاں عام ہو جائیں گی، نیک لوگ رہیں گے، نیکی کرنے والے ہوں گے، لیکن برائی پر خاموش رہنے کی وجہ سے جب برے لوگ ہلاک ہوں گے تو ساتھ میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اصلاح معاشرہ کیوں؟ حدیث جواب دیتی ہے کہ اصلاح معاشرہ اس لیے کہ اگر معاشرے میں پھیلی ہوئی اور معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں پر روکے کوئی شخص روکنے والا نہ ہو، کوئی شخص خاموش رہے، تو برائی کرنے والا اگر ہلاک ہوگا تو برائی پر چپی سادھنے والا بھی ہلاک و برباد ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کیوں؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79 کے اندر اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے، بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بنی اسرائیل کو دور کر دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے، ان دونوں آیتوں کے مفہوم پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، بنی اسرائیل کے کافروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کھینچ لی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل کے کافروں پر جو لعنت کی گئی، قرآن 3 اسباب کو بیان فرماتا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ قوم نافرمانی کرنے والی تھی اور یہ قوم حد سے گزر جانے والی تھی۔ تیسری وجہ قرآن بتاتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، بنی اسرائیل میں جو برائیاں ہو رہی تھی، آپس میں جو لوگ برائیاں کر رہے تھے، تو برائیاں نہ کرنے والے برائیاں کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود روکا نہیں کرتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے۔ لبیس ما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے بڑا ہی برا وہ کرتے تھے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی گئی، وجہ کیا ہے کہ برائیاں ہو رہی ہیں لیکن برائیاں نہ کرنے والے برائیوں کو روک نہیں رہے، مجھے کیا لینا دینا۔
इस्लाह मुआशरा क्यों, ये दोनों आयतें जवाब देती हैं कि समाज के अंदर गुनाह धड़ल्ले से किया जा रहा हो और वो रोकने वाला कोई ना हो, ना रोके, खामोश रहे, तो उस कौम से अल्लाह तबारक व तआला रहमत को उठा लेता है और उस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला अजाब को नाजिल फरमा देता है। और बुराइयां करने वाले भी अजाब में मुब्तला होते हैं और बुराइयां ना करने वाले भी बुराइयों को ना रोकने की वजह से अजाब इलाही के शिकार होते हैं। जबकि कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 71 पढ़ेंगे तो समाज में फैली हुई बुराइयों पर कदगन लगाने की वजह से उस समाज पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह तबारक व तआला की बरकतों का नुज़ूल होता है। आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए। वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं ईमान की बुनियाद पर। यामुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर, एक मोमिन मर्द का मशगला क्या होता है, एक मोमिना औरत का मामला क्या होता है समाज और माशरे के अंदर। यामुरूना बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, मारूफ का हुक्म देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, नमाज की ताकीद करते हैं, हलाल खाने की ताकीद करते हैं, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाने की ताकीद करते हैं, शरीयत के मुताबिक शब व रोज गुजारने की ताकीद करते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हैं। जब भी समाज के अंदर बुराई देखते हैं तो खामोश नहीं रहते हैं, बल्कि कहते हैं कि आपने ये अमल शरीयत के खिलाफ किया है, आपने ये काम कुरान और हदीस के खिलाफ किया है, आप शराबी हैं, शराब पीना छोड़ दीजिए, इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जिना करना हराम है, इस्लाम में चोरी करना हराम है, इस्लाम में डाका डालना हराम है, इस्लाम में अपने भाई का माल नाजायज तरीके से खाना हराम है। वयनहौना अनिल मुनकर, मुनकरात से रोकते हैं। वयुकीमून अस्सलाह वयुतून ज़का, नमाज कायम करने वाले होते हैं, ज़कात देने वाले होते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले होते हैं। कुरान उसके बाद कहता है उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला रहमो करम का मामला फरमाएगा। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, आयत का ये आखिरी टुकड़ा ये नुक्ता पेश करता है कि जिस मुआशरे और समाज के अंदर इस्लाह का काम चलता रहे, गुनाहों से रोकने का काम जारी रहे, गुनाह को गुनाह समझा जाए और गुनाह को रोकने की अनथक कोशिश की जाए, वो मुआशरा और समाज अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का हकदार होता है, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत का हकदार होता है। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये टुकड़ा हमें ये नुक्ता पेश करता है। इस्लाह मुआशरा क्यों, एक और हदीस से समझते हैं। वअन हुज़ैफ़त इब्न अल-यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ़ व लतनहौन्न अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअथ अलैकुम इक़ाबन मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजीबु लकुम, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल फ़ितन। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस है हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। कसम के बाद कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मतलब यह है कि कसम के बाद की बातें बड़ी अहमियत के हामिल है। लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुम जरूर भी जरूर भली बातों का हुक्म दोगे, वलतनहौन्न अनिल मुनकर, और मुआशरे और समाज में फैली हुई बुराइयों के ताल्लुक से तुम एक्टिव रहोगे, रोकोगे, लोगों को मना करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे, हमें क्या मतलब है, हम तो गलत नहीं कर रहे हैं, फला जाए भाड़ में। अगर ऐसा नहीं करोगे,
अगर ऐसा नहीं करोगे, औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन, अगर मुआशरे और समाज में आपने बुराई करते हुए किसी शख्स को देखा और रोका नहीं, मुआशरा बुराइयों में लथपथ है, बुराइयों में डूबा जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा? अन यबअस अल्लाहु इक़ाबम मिन, अल्लाह तबारक व तआला उस मुआशरे पर अजाब को नाजिल फरमाएगा। नुकसान क्या होगा? सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजीबु लकुम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजाएं करोगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को सुनेगा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा। दुआ शरी गुनाह को देख करके चुप रहने वाले की दुआ को नहीं सुनेगा, तो गुनाह करने वाले की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कैसे सुनेगा? तो इसीलिए इस्लाह मुआशरा जरूरी है। इस्लाह मुआशरा क्यों? एक हदीस एक और जवाब देती है। हदीस इस तरह से, वअन तारिक इब्न शिहाब क़ाल समेअतु अबा सईद यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, रवाहु नसाई फ़ी किताबिल ईमान। नसाई शरीफ के अंदर किताबुल ईमान में यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस है अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन रआ मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, कि समाज में कोई शख्स मुनकर को देखे, खिलाफे शरा काम होता हुआ देखे, खिलाफे शरा अमल करता हुआ देखे, कोई शख्स अगर नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन नमाज तरीक़े रसूल के खिलाफ पढ़ रहा है, रोज़ा तरीक़े रसूल के खिलाफ रख रहा है, हज तरीक़े रसूल के खिलाफ कर रहा है, हराम कमाई में कोई शख्स मसरूफ़ है, मुआशरा और समाज बुराइयों के दलदल में फंसता चला जा रहा है, फलयुग़य्यिरहु बियदिही, आप मुआशरे और समाज के हेड हैं, आपके पास पावर है, आप विधायक हैं, आप फला है, आपके पास पावर है, अपने हाथ से बुराई को रोकने की कोशिश करें। बाप अपने बेटों को बुराइयां करते हुए देखता है, छोड़ देता है। माँ अपनी बेटियों को बुराइयां करते हुए देखती है, छोड़ देती है। बाप देखता है कि मेरा बेटा दिन भर या तो गाना सुनते हुए दिन गुजारता है, या तो फिल्म देखते हुए दिन गुजारता है, या तो गली और कूचों में कुत्तों की तरह, जिस तरह एक कुत्ता कुत्ती के पीछे भागते रहता है, उसी तरह से मेरा बेटा बदतमीजी करते हुए, बेहयाई करते हुए, कभी इस गली में कभी उस गली में दिन गुजारता है। एक ही बेटा है, लाडला है, डांटेंगे तो नाराज हो जाएगा। फलयुग़य्यिरहु बियदिही, समाज को इस्लामी समाज बनाने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका दिया है कि आपको पास अल्लाह ताला ने हाथ से रोकने की ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको पावर अता किया है, तो बुराई को रोकने के लिए पावर का इस्तेमाल कीजिए। फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर पावर से बुराई को रोक नहीं सकते हैं तो जबान से कहिए आप गलत हैं, गलत कर रहे हैं, शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज करने वाला अमल आप कर रहे हैं, तरीक़े रसूल के खिलाफ आप ये अमल कर रहे हैं, आप अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दावत देने के जो भी उसूल हो सकते हैं उन उसूल को अपनाया जाए। फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी, और अगर जबान से रोकने की ताकत ना, और अगर जबान से रोकने की ताकत ना हो तो उस बुराई को दिल से बुरा जाने, शरीक ना हो जाए। और इस्लाही मुआशरा क्यों यह हदीस जवाब देती है कि क्योंकि समाज में फैली हुई बुराइयों को रोकने के लिए पावर का इस्तेमाल करना, या जबान का इस्तेमाल करना, या दिल से बुरा जानना, ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का हिस्सा है। और इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने इस हदीस को किताबुल ईमान के अंदर दाखिल करके ये नुक्ता पेश किया है कि
मुआशरे और समाज में फैली हुई बुराइयों के ताल्लुक से बोलते रहना, रोकते रहना, यह ईमान का हिस्सा है। और जिसके दिल में जिस कदर ईमान होगा उसी तरह से उस समाज में फैली हुई बुराइयों को देख करके तकलीफ महसूस करेगा, घुटन महसूस करेगा, परेशान और बेचैन और इस फिक्र में वो रहेगा कि मैं इस बुराई को कैसे रोकूं और किस अंदाज से रोकूं। तो पता चला कि इस्लाह मुआशरा क्यों, इसलिए कि इस्लाह मुआशरा की कोशिश करना ये ईमान का हिस्सा है। और जिस कदर ईमान मजबूत होगा उसी कदर समाज में फैली हुई बुराइयों को देख करके एक मोमिन का दिल बेचैन और बेकरार रहेगा। तो इस्लाह मुआशरा क्यों? मेरी तकरीर की दूसरी कड़ी है कैसे समाज में फैली हुई बुराइयों को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं। पहली चीज, जिस मुआशरे और समाज के अंदर बुराइयां आम हो रही हों, अक़ीदा तौहीद को आम किया जाए, तौहीद की अहमियत उन्हें बताई जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत से उन्हें आगाह किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत से उन्हें आगाह किया जाए। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअम्मी क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु लका बिहा यौमल क़ियामा क़ाल लौला अन तुअय्यिरनी क़ुरैशुन यक़ूलून इन्नमा हमलहु अला ज़ालिका अल-जज़अ ला क़ररतु बिहा ऐनक फ़अंज़लल्लाह इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मरते वक्त कहा, जाकनी का आलम है, दुनिया छोड़ करके जाने वाले हैं, कहा कि चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लीजिए। अगर आपकी मौत ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए हो जाती है, अशहदु लका बिहा यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन मैं गवाही दूंगा कि परवरदिगारा मेरा चचा जब दुनिया छोड़ रहा था तो आखिरी जो कलमा था वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। चचा ने क्या कहा कि मेरे भतीजे, लौला अन तुअय्यिरनी क़ुरैशुन यक़ूलून इन्नमा हमलहु अला ज़ालिका अल-जज़अ, अगर कुरैश के आर का डर मुझे ना होता, अगर मैं मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूंगा तो मेरे मरने के बाद कुरैश वाले ये कहेंगे कि मौत के डर से भतीजे का दीन अबू तालिब ने अपना लिया। तो ला करार तो बिहा ऐनक, मैं तुम्हारी आंख को ठंडी कर देता। आज भी होते हैं ना, तौहीद जानते हैं, तरीक़ा रसूल को जानते हैं, लेकिन इसलिए शिर्क को छोड़ करके दायरे तौहीद में इसलिए नहीं आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे कि देखो बाप दादा मजार पर चादर चढ़ाता रहा, बाप दादा शिर्क पर डटा रहा और ये इस शख्स ने बाप दादा का दीन छोड़ करके नया दीन अपना लिया है। कहा अगर आर का मुझे डर ना होता तो मैं तुम्हारी आंखों को ठंडी कर देता। ला करार तो बिहा ऐनक, यह हदीस का टुकड़ा वाज़े करता है कि दिल में अक़ीदा तौहीद बसी हुई हो तो दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। ला करार तो बिहा ऐनक, मैं तुम्हारी आंख को ठंडी कर देता। आदमी तौहीद के मामले में जिस कदर मजबूत होता है, जो मुआशरा और समाज तौहीद में मजबूत होता है, वो सुकून और इत्मीनान, दुनिया में भी सुकून और इत्मीनान पाता है और आखिरत में भी सुकून और इत्मीनान पाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक अहम पहलू यह भी है कि दावत तौहीद के मामले में सबसे ज्यादा परेशानियां और सबसे ज्यादा दिक्कतें आई हैं अंबिया किराम की जिंदगी में भी, और जिसने भी शिर्क और बिदअत के मामले में तौहीद को आम किया वो परेशान किए गए, बेचैन और बेकरार किए गए।
تو اصلاح معاشرہ کیسے؟ اہم پہلو یہ ہے کہ توحید کی حقیقت کو عام کیا جائے، توحید کے پہلو کو عام کیا جائے، توحید کی عظمت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کئی مقامات پر یہ اعلان کیا ہے کہ اگر آپ بھی توحید کے ڈگر سے ہٹ جائیں گے تو آپ کا بھی معاملہ خطرناک ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر چند آیتوں پر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو چھوڑ کر کے آپ ایسوں کو نہ پکاریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نے مانگا، اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا، آپ کا شمار بھی گناہگاروں میں ہوگا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 213 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکاریں، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ آپ کا شمار بھی عذاب پانے والوں میں ہو جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرنے لگے، اگر آپ بھی توحید کی روشنی کو اپنے دل سے نکال کر کے پھینک دیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق ہونے کے باوجود آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، آپ کا عمل ناکارہ ہو جائے گا، آپ کا عمل خسارے میں شمار ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اصلاح معاشرہ کیسے؟ توحید کی دعوت کو عام کریں۔ اصلاح معاشرہ کیسے؟ معاشرے و سماج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو عام کریں۔ کوئی عمل خلاف شرع ہو رہا ہے، آپ انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اور آپ اس طریقے کے خلاف ہی عمل کر رہے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عمل طریقہ رسول کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام کے اندر جذبہ اطاعت کا معاملہ کیا تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب من فزيق الزهو وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة يا انس قم فاحرقها قال فاحرقتها۔ رواه البخاری فی کتاب الاشربہ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچی اور پکی کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ شراب پلا رہا تھا، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں ان ساتھیوں کو شراب پلا رہا تھا، فجاہم آتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی آتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ لوگوں ان الخمر قد حرمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لو کہ آج سے شراب کا پینا حرام ہے، آج سے شراب کو کوئی شخص ہونٹ سے نہ لگائے، جامع شراب کو کوئی شخص ہاتھ سے نہ چھوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ
अन्हो के कानों में जब ये आवाज टकराती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब का पीना हराम करार दे दिया है, कहते हैं कि कुम या अनस फहरिक़हा, कहते हैं अनस शराब को मक्का की गलियों में बहा दे, शराब के मटके फोड़ दे, शराब के जो जाम है शराब के जाम को होठों से दूर कर दे। फहरक़्तुहा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया और हुक्म अबी तलहा आते ही मैंने शराब के मटके फोड़ दिया और शराब को मदीना की गलियों में बहने दिया। इस्लाह मुआशरा कैसे? इस्लाह मुआशरा में एक अहम रोल यह है कि इस्लाह मुआशरा के अंदर इत्तिबाए रसूल के जज्बे को आम किया जाए। बीड़ी हराम है, क्या करें साहब, आदत हो गई है, ना पिया तो पखाना ही नहीं होता है। खैनी हराम है, गुल हराम है। कितने ऐसे लोग हैं जो रमजान में भी गुल करते हैं, क्यों? हलक के नीचे का मामला है, हलक के ऊपर का मामला है ये। क्या करें, आदत हो गई है। उठाइए तारीख, शराब मक्का के लोगों में बसी हुई थी, हर मामले में वो शराब 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 के वो रसिया थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के इस कदर वो पासदारी करने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इस कदर लिहाज करने वाले थे कि शराब हराम है, शराब अब आज से नहीं पीना है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मुसलमानों, यह है जज्बा इताअत हमारे अंदर। मुआशरे और समाज के अंदर इस मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाना है। अगर हम चाहते हैं कि एक मुसलमान का मुआशरा इस्लामी मुआशरा बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं उस काम की वजह यह होनी चाहिए कि मैं इसलिए ये अमल कर रहा हूं कि यह अमल मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और मैं इसलिए ये अमल छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से हमें मना किया है। इस्लाह मुआशरा का ये तरीका अपनाया जाए। इसी तरह से इस्लाह मुआशरा कैसे, इस्लाह मुआशरा कैसे समाज में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, इस बात का एहसास दिलाया जाए। आदमी का ज़मीर जिंदा रहे कि अगर मैं गुनाह करूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मेरा मामला खतरनाक होने वाला है, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तन्हा खड़ा होना है और मुझे क़यामत की हौलनाकियों का मुकाबला करना है। क्या मामला होगा, एक हदीस से समझते हैं। वानिल मिक़दाद इब्न अल-अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल तुदना शम्सु यौमल क़ियामति हत्ता तकून मिनहुम का मिक़दार मील। क़ाला सुलैम इब्न आमिर फ़वल्लाहि मा अदरी मा यानी बिल मील अम मसाफ़तल अर्दि अमिल मील अल्लज़ी तुक़्तहलु बिहिल ऐन। क़ाला फ़यकूनु अन्नासु अला क़दरि अमालिहिम फ़िल अर्क़ फ़मिनहुम मन यकूनु इला कअबै व मिनहुम मन यकूनु इला वमिनहुम मन यकूनु इला हक़वै वमिनहुम मन युलजिमुहुल अरक़ु इल्जामा। क़ाला व अशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही इला फ़ी रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल जन्नह। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस है मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आपने क्या फरमाया? तुदना शम्सु यौमल क़ियामा हत्ता तकून मिनहुम का मिक़दार मील। क़यामत के दिन सूरज इतना करीब होगा कि बिल्कुल सूरज एक मील की मसाफत पर होगा। रावी हदीस सुलैम बिन आमिर कसम खा के कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मील से क्या मुराद ली, इसलिए कि मील के दो माने होते हैं अरबी में। एक तो मील, हमने एक मील का सफर किया, 2 मील का सफर किया। एक मील वमन 3 किलोमीटर को 1 मील कहते हैं। और 1 मील जिस सुरमा दानी के अंदर हम सलाई डालते हैं, उस सलाई के जरिए से जो हम सुरमा लगाते हैं, उस सलाई को भी अरबी में मील कहा जाता है। यानी हाथ उठाए तो सूरज हाथ को लग जाए। सलाई मुराद लेते हैं तो हाथ उठाए तो सूरज हाथ को लग जाए।
करोड़ों मील दूर सूरज है, हाल यह है कि पंखे के बगैर गुजारा नहीं है, एसी के बगैर गुजारा नहीं है, छांव के बगैर गुजारा नहीं है। दुनिया की गर्मी से बचाव के लिए सामान पैदा करने वाले, आखिरत की गर्मी से बचने के लिए हमारे पास क्या सामान मौजूद है? हमने क्या तैयारी कर रखा? हम क्या तैयारी कर रहे हैं? पसीने का क्या हाल होगा? लोग आमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई नाक तक पसीने में डूबा हुआ होगा। इस्लाहे मुआशरा कैसे? मुआशरे और समाज के अंदर क़यामत की हौलनाकी आम की जाए कि लोगों, अगर समाज के अंदर बुराइयां करते रहे तो मरने के बाद मामला खतरनाक होने वाला है। मामला खतरनाक होने वाला, कैसे होने वाला है? कुरान से पूछिए। सूरह अंबिया की तिलावत शुरू से कीजिए। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? सूरह हज की तिलावत शुरू से कीजिए। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत साअति शैउन अज़ीम। ए लोगों, अपने रब से डर जाओ। ए दुनियावी जिंदगी में गुनाह करने वाले, अपने गुनाह से डर जाओ, अपने गुनाह से बाज आ जाओ। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम। ए मुस्लिम मुआशरे के अंदर बुराइयां आम करने वाले, बेहयाइयां आम करने वाले, अल्लाह ताला को नाराज करने वाले काम करते हुए जिंदगी गुजारने वाले, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ, अपने परवरदिगार से डर जाओ। इन्न ज़लज़लत साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही खतरनाक ज़लज़ला होगा। क़यामत का ज़लज़ला सबसे अजीम ज़लज़ला होगा। दुनिया के एक हिस्से में ज़लज़ला आता है, क़यामत से पहले वो ज़लज़ला क़यामत का मंजर पेश करता है। माँ को बेटी की परवाह नहीं होती है, बाप को बेटे की परवाह नहीं होती है, बीवी को शौहर की परवाह नहीं होती है, शौहर को बीवी की परवाह नहीं होती है। आदमी बेचैन और बेकरार हो जाता है। कुरान कहता है इन्न ज़लज़लत साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही अहम ज़लज़ला और बहुत ही अजीम ज़लज़ला होगा। नतीजा क्या होगा? यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत। क़यामत के दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पिलाते बच्चों को भुला देंगी। माँ की ममता की मिसाल कुरान देता है। वो भी एक माँ दूध पीते बच्चे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। उस दूध पीते बच्चे की खातिर माँ रात भर जागना गवारा कर लेगी, लेकिन उस बच्चे को तकलीफ में पाले, माँ को ये गवारा नहीं। दूध पीता बच्चा सेहतमंद रहे, उसके लिए माँ उसी बच्चे के एतबार से खाना खाती है, उसी एतबार से सोती है। माँ दूर नहीं जा सकती है, मेरा बच्चा रो रहा होगा, दूर जाए तो माँ वापस आकर के अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को सीने से चिमटा लेती है। दूध पीते बच्चे से माँ सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। उस मोहब्बत, उस ममता की मिसाल कुरान देता है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत। जिस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे की परवाह नहीं करेगी। मेरा दूध पीता बच्चा रो रहा है कि मेरा दूध पीता बच्चा किस हाल में है, माँ को कोई परवाह नहीं होगी। मेरा दूध पीता बच्चा बीमार है, माँ को कोई परवाह नहीं होगी। मेरा दूध पीता बच्चा भूखा है, माँ को कोई परवाह नहीं होगी। मेरा दूध पीता बच्चा किस हाल में है, माँ को कोई परवाह नहीं होगी। व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, हामिला औरतें हमल को गिरा देंगी। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। क़यामत के दिन तुम देखोगे कि लोग इस हाल में नजर आएंगे, ऐसा लगेगा कि ये लोग नशा किए हुए हैं, इन लोगों ने नशा किया हुआ है। व मा हुम बिसुकारा, नशा किए हुए नहीं होंगे। वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह ताला का अज़ाब भी इतना सख्त होगा, क़यामत का ज़लज़ला इतना सख्त होगा कि किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, सब एक दूसरे से बेखबर होंगे। इस्लाहे मुआशरा कैसे? इस्लाहे मुआशरा और समाज के अंदर क़यामत की होलनाकी को आम करें कि क़यामत के दिन बुराई करने वाले का मामला बड़ा ख़तरनाक होने वाला है, अंजाम बड़ा ख़तरनाक होने वाला है।
इस्लाही मुआशरा कैसे? मुआशरे और समाज के अंदर जुल्म हो रहा हो, जालिम का हाथ रोकिए और मजलूम की मदद कीजिए। और अगर जालिम जुल्म से रुकता नहीं है, उन्हें आगाह किया जाए, उन्हें बताया जाए कि मामला बड़ा खतरनाक होने वाला है। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून मल मुफलिस क़ालू अल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता क़ाल इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिस्सलाति वस्सियामि वज़्ज़कात व याती क़द शतमा हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनाति फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहु फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल बिर्रि वस्सिला। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मुआशरे और समाज के अंदर जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग दूसरों को बिला वजह सताते हैं, जो लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके इस्लामी समाज को इस्लामी समाज रहने नहीं देते हैं, ये हदीस लेकर के जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतदरून अमल मुफलिस, मेरे सहाबा जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं, मजबूर किसे कहते हैं? वही जवाब दिया सहाबा किराम ने जो हमारे पास जवाब होता है, जिनके पास रुपए पैसे ना हो वो मुफलिस है, वो कल्लाश है, वो मजबूर है। कहा नहीं, मैंने दुनियावी मुफलिसी के बारे में नहीं पूछा है, मेरे सवाल का मकसद के आखिरत के दिन मुफलिस कौन होंगे, आखिरत के दिन पाई पाई के लिए कौन तरस रहे होंगे। दुनिया में कितने ऐसे बैंक बैलेंस वाले हैं जो क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए तरस रहे होंगे। दुनिया में कितने जाहो मनसब वाले हैं जो क़यामत के दिन ज़लीलो ख़ार होंगे। काइन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिस्सलाति वस्सियामि वज़्ज़कात, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन रोज़ा लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, अला हादल क़ियास वो हज लेकर के आएगा, सदक़ात व खैरात लेकर के आएगा, बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएगा। और ये जो अमाल होंगे खिलाफ शरअ अमाल नहीं होंगे, शरीयत के मुताबिक ये इबादतें होंगी, शरीयत के मुताबिक ये इबादतें होंगी। और हदीस ये नुक्ता पेश करती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन इबादतों को कबूल भी किया होगा, खुश होगा क़यामत का दिन। वयाती क़द शतमा हाज़ा, नमाज़ी साहब है, कितने ऐसे नमाज़ी साहब हैं जो सजदा कर रहे हैं लेकिन उन्हें भाई से उनकी बनती नहीं है, भाई की जमीन को उन्होंने हड़प कर रखा है, बहन को विरासत में उन्होंने हिस्सा नहीं दिया है। कितने ऐसे नमाजी हैं जो जिनकी ज़बान ग़ीबत करने से रुकती नहीं है, चुगली करने से रुकती नहीं है, गाली देने से रुकती नहीं है, दूसरों को सताने से रुकती नहीं है। कितनी हमारी माएँ और बहनें हैं नमाज भी पढ़ती हैं और जब भी ज़बान दराजी की बात आए दिन भर गाली देना रहे, दिन भर गाली दे सकती है। ग़ीबत चुगली करने के लिए उनके पास वक्त मौजूद है, वक्त नहीं है तो तिलावत कुरान के लिए वक्त नहीं है, वक्त नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को जानने के लिए, सीखने के लिए वक्त नहीं होता है, वक्त नहीं होता है तो तरीक़ा रसूल के मुताबिक अमाल करने के लिए वक्त नहीं होता है। वयाती क़द शतमा हाज़ा, परवरदिगारा ये जो नमाज़ी साहब हैं, ये जो ज़काती साहब हैं, ये जो हाजी साहब हैं, इसने दुनिया के अंदर मुझे गाली दी थी, इसने दुनिया के अंदर मुझे गाली दी थी, दुनिया के अंदर मैं मजलूम था, मैं बदला लेने के मूड में नहीं था और मैं बदला लेने की ताकत मेरे अंदर नहीं थी। आज इंसाफ का दिन है, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझ पर इल्जाम लगाया था, इसने मेरा माल दुनिया के अंदर हड़प कर लिया था, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया था, मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, मुझे मारा था, मेरा कत्ल किया था। लोग आते रहेंगे, समाज में रह रहे हैं और अपनी इस्लाह नहीं कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, लेकिन ऐसा शख्स कहाँ जा रहा है? जहन्नम में जा रहा है।
फयूता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनाती। शिकायत करने वाले आएंगे, शिकायत करने वालों की शिकायत के एतबार से नमाजी साहब की नमाज की नेकियों को उठा करके मजलूम के हवाले उनकी नेकियां कर दी जाएंगी। शिकायत करने वाले आएंगे, ज़कात देने वालों की नेकियां उठा करके शिकायत करने वाले के हवाले वो नेकियां कर दी जाएंगी। हाजी साहब है, इन्होंने सताया है, मारा है, जुल्म किया है, समाज के अंदर अपनी इस्लाह नहीं की है, तो हाजी साहब के हज का सवाब उठा करके मजलूम के हवाले कर दिया जाएगा। हदीस कह रही है कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, वो शिकायत करने वालों का तांता भी लगा रहा होगा, खत्म नहीं हुआ होगा, आ रहे होंगे। अब क्या होगा? उखिदा मिन खतायाहुम फतुरिहत अलैहि। शिकायत करने वाले, अल्लाह इसने मुझ पर जुल्म किया था, मेरे साथ ये गलत काम किया था, वो गलत काम किया था। अब शिकायत करने वाले को गुनाह को उठा करके नमाजी साहब के सर पर डाल दिया जाएगा, हाजी साहब के सर पर डाल दिया जाएगा, ज़काती साहब के सर पर डाल दिया जाएगा। चंद लम्हा पहले जिनके पास जन्नत में जाने वाली नेकियां थी, अब उनके ऊपर गुनाह ही गुनाह होंगे और उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इंसान लड़ना चाहेगा, अल्लाह से बातें करना चाहेगा, इस तरह दुनिया में वकील को खरीद लेता है, रिश्वत के जरिए से जंग जीत जाता है, वहां वो करना चाहेगा। कुरान कहता है हम मुंहों पर मोहर लगा देंगे। सूरह यासीन आयत नंबर 65 को पढ़िए। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। क़यामत के दिन इंसान का हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातें करेगा। जिस तरह आदमी दुनिया के अंदर बोल रहा है, जबान के जरिए से हाथ बोलेगा, कहेगा परवरदिगारा इस शख्स ने मेरा इस्तेमाल तुझे नाराज करने के लिए किया था, फला गलत काम करने के लिए किया था, फला हराम काम करने के लिए किया था, फला को सताने के लिए किया था, मुआशरे व समाज के अंदर मुआशरे व समाज के अंदर बुराइयों को फैलाने के लिए किया था। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। इंसान का कदम, इंसान के पांव अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गवाही देंगे कि परवरदिगारा मेरा इस्तेमाल इस शख्स ने तुझे नाराज करने में किया था, गलत कामों के लिए किया था। बिमा कानू यक्सिबून। जो कुछ भी इंसान दुनिया के अंदर गलत किया होगा, इंसान का कदम बोलेगा, इंसान का हाथ बोलेगा। तो इस्लाह मुआशरा कैसे? मुआशरे और समाज के अंदर मजलूम का हाथ पकड़, मजलूम का साथ दिया जाए और जालिम का हाथ पकड़ा जाए। जालिम को बताया जाए कि जुल्म का अंजाम दुनिया में भी होने वाला है और आखिरत में तो जुल्म का अंजाम बड़ा ही खतरनाक है। इसी तरह से इस्लाह मुआशरा कैसे? जहन्नम की होलनाकी, जहन्नम का हवाला दिया जाए। आप गलत कर रहे हैं, ठिकाना जहन्नम है जी। जहन्नम का हवाला दिया जाए, जहन्नम की होलनाकी से आगाह किया जाए। एक दो सहाबा लड़ते हुए आते हैं, उस लड़ाई का खात्मा जहन्नम का हवाला देकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। एक हदीस से समझते हैं। वान उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बशर व इन्नकुम तख्तसिमूना इलय्या व लअल्ल बअदकुम अन यकूना अलहना बिहुज्जतिही मिन बअद फ़अक़दी अला नहवी मा अस्मअु मिन्हु फमन क़ज़यत लहु मिन हक़्क़ि अख़ीहि शयअन फला याख़ुज़ु मिन्हु शयअ फ़इन्नमा अक़तअु लहु क़िताअतन मिनन नार। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल अक़ज़िया। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। राविया हदीस रहते उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा अना बशर, कि लोगों मैं बशर हूँ। अकीदे का एक मसला रखा जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, नूर नहीं है, इसकी गवाही खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि लोगों मैं बशर हूँ। व इन्नकुम तख्तसिमूना इलय्या, और आप लोग अपना झगड़ा लेकर के मेरे पास आते हो, अपने झगड़े का फैसला कराने के लिए मेरे पास आते हो। फ़अक़दी अला नहवी मा अस्मअु मिन्हु। तो जब दो आदमी हमारे पास आते हो,
दोनों आदमियों की बातें सुनने के बाद अगर लगता है कि फला हक है और फला नाहक है, तो दोनों की गवाही सुनने के बाद मैं फैसला कर देता हूं कि आप हक हैं और आप नाहक हैं। लेकिन सुनो, फमन क़ज़यतु लहू मिन हक़्क़ि अख़ीहि शयअन फला याख़ुज़ मिन्हु शयअ। दोनों अशखास की बातें सुनने के बाद अगर मैं कह दूं कि ये चीज आपकी है, ये जमीन आपकी है, जबकि हकीकत में वो आपकी नहीं है, फला याख़ुज़ मिन्हु शयअ, तो मेरा ये कहने के बावजूद कि ये चीज आपकी है और आप जान रहे हैं कि वो आपकी नहीं है, तो ना ले। पता चला कि कोर्ट कचहरी में जो हम चक्कर लगाते हैं, हमें पता होता है कि ये जमीन मेरी नहीं है, लेकिन हम कोर्ट कचहरी में हमारी कुर्बत की वजह से, रिश्वत की वजह से, अच्छे वकील की वजह से हम जंग जीत जाते हैं और हमने ये डिक्लेयर कर देते हैं, हम ये फैसला कर लेते हैं कि अब ये जायदाद हमारी हो गई। कोर्ट में आपने जंग को जीत लिया है उसके, और आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जमीन आपकी नहीं है, तो कोर्ट कचहरी में केस जीत जाने के बावजूद आपकी वो जमीन नहीं हो सकती है, आपकी वो जमीन नहीं है। यही कह रहे हैं कि अगर मैंने कह दिया कि ये जमीन आपकी है और आपकी नहीं है, तो ना ले। अगर वो ले रहा है ये जानते हुए कि ये जमीन मेरी नहीं है, तो वो जमीन नहीं ले रहा है, फ़इन्नमा अक़्तअु लहू क़ित्अतम मिनन नार, वो आग का एक टुकड़ा ले रहा है। इस्लाह मुआशरा कैसे? जब भी इस तरह के झगड़े हों, जब भी इस तरह की कोई बातें हों, तो उस बुराई के खात्मे के लिए, उस बुराई को दूर करने के लिए जहन्नम का हवाला दिया जाए कि अगर आप ये गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से इस चीज को हासिल कर रहे हैं, याद रखिएगा ये दुनियावी जिंदगी है, मरने के बाद इस गलत चीज के हुसूल का बदला जहन्नम है, दहकती हुई आग है। नतीजा क्या निकला उसके बाद वाली हदीस? नतीजा क्या निकला? कहते फबकर रजुलान, जब दोनों सहाबा ने आग का हवाला सुना कि अगर कोई शख्स गलत तरीके से किसी का सामान ले लेता है तो वो सामान नहीं, वो जहन्नम की आग ले रहा है, फबकर रजुलान, दोनों सहाबा रोने लगे। वक़ाल कुल्लु वाहिद मिनहुमा हक़्क़ी लक, चंद लम्हा पहले लड़ाई ये थी कि ये सामान मेरा है, ये सामान मेरा है। जहन्नम की बात आने के बाद अब दोनों उस सामान के दावेदार से बरी होने का ऐलान कर रहे हैं। कहते कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा ये सामान मेरे भाई को दे दीजिए। दूसरा भाई कहते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा ये सामान मेरे दूसरे भाई को दे दीजिए। इस्लाह मुआशरा कैसे? गलत काम हो रहा हो, खिलाफ शरअ काम हो रहा हो, तो गलत काम होते हुए देखने वालों को चाहिए कि जहन्नम का हवाला दे, जहन्नम का हवाला दे करके उन्हें बताए कि उखरवी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, आखिरत की जिंदगी तबाह मत कीजिए। अगर दुनिया में आप गलत करेंगे, खिलाफ शरअ अमल करेंगे, तो आखिरत में नुकसान होने वाला है, आखिरत का मामला बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो इस्लाह मुआशरा क्यों और कैसे? ज़रूरत इस बात की है कि इस ताल्लुक से हमें हसास रहने की ज़रूरत है। मुस्लिम मुआशरे में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने की ज़रूरत है। मुस्लिम मुआशरे में आप देखेंगे औरतों का जो तबका है दीन से बिल्कुल दूर है, जवानों का तबका है दीन से दूर है, बूढ़ों का तबका है दीन से दूर है। हर तबके में काम करने की जरूरत है, हर तबके में इस्लाह की जरूरत है। लिहाजा मुनज़्ज़म तरीके से, चाहे वो इलाकाई एतबार से हो, चाहे वो किसी भी सतह पर हो, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जिस सलाहियत से नवाजा है, जिस कुव्वत से नवाजा है, जरूरत इस बात की है कि मुनज़्ज़म तरीके से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम किया जाए। बुराई देखें तो बुराई को रोकें, जबान से रोकने की ताकत है जबान से रोकें, हाथ से रोकने की ताकत है
हाथ से रोकें, और अगर दोनों सलाहियतें नहीं है तो बुराई को बुराई जाने। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा माशरा अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का शिकार होता है, अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार होता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुराई को बुराई समझते हुए बुराई को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए उखरवी ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा, जब तक हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान की हालत में ज़िंदा रख, जब हमारा खात्मा हो तो इस हाल में खात्मा हो कि हम तुझसे राज़ी हों, तू हमसे राज़ी हो। परवरदिगारा, जब हम दुनिया को छोड़ करके जाए तो हमारी हालत ये हो कि कब्र की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, मैदान महशर की रहमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, और जन्नत की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।